My name is Shalini Upadhyay. I am coordinator at Kinchin Kids Preschool and Daycare, Bhopalpura. I am here from 2005, but on the papers I am here from 2012. Basically, it's a family owning business preschool and daycare. And our place is the first daycare of Udaipur. We have successfully completed 23 years. And I take care of the complete management part, like the admission part, the interview part, the complete coordination between the staff members. And I used to make up the program for the children also. This place is running since 1977. We have the classes up to 8th, and in 2001, 1st of August, we started daycare. That time there was no concept of any daycare in the city. Nobody was knowing what is the daycare. But the principal of this school, Krishna Paneri madam, she faced several challenges in her life while undergoing her schooling, her college. She was facing problem to handle her own child. So with that thought, she opened this daycare. And the USP of this school is, like in daycare, this is the only daycare which take the kids from the age of 6 months. Nowadays, there are several daycares in Udaipur, but none of the daycare as on date, like today is 7th of January 2025, none other than the daycare like Kinchin has this responsibility to take the kids from the age of 6 months. It's a very big challenge. It's a USP of this place. And for the girl place, it's a very safe one because the parents think twice for the girls. Where to drop, from how long time the place is running. And this is the USP of this place. Here we are determined, we have in the vision that in each classes or in each age category, we will take 12 students. Because as I told you just now that since 1977 we are working, so it means we have built up some knowledge regarding the kids. And if we are taking the kids from the age of 6 months, it means we are the person who is seeing the first crawl of that child, first voice of that child in front of us. And that moment we share with the parents in the form of video, definitely. And if we are catering 12 kids in each age categories, then our results from last 23 years in the daycare is the excellent one. All the parents are mostly satisfied, and kids are also, they are up to the mark where we want to place them. They are. Because if we want to take care of each points of each child, it's just possible if we will specify the seat, specify the limit. And in my team, no doubt we take care of the education part also. They are the B.Ed, M.Ed one, they are the PhD one. But more than that, we want that they should have the touch of mother touch. And I personally check my team also by seeing certain conditions, or I get to know about the things, okay, if the child is not able to speak the word, or if one of the child is very extrovert, how to make both the kids in a balanced way. अगर बच्चा बहुत शांत है, बहुत चुप है, तो क्यों है, उसको क्यों को हमें जानना है. और हम जान लेते हैं. अब हम उस पोजीशन पे हैं, इतना सालों का हमारा वर्क करा हुआ है, और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, हम नहीं क्वेश्चन पुटअप करें तो भी ही इज़ हैविंग द क्वेरीज एंड ऑल, तो उसको कैसे हमें उसको कूल डाउन और काम करना है, मॉडरेट लाना है. तो जो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं उनसे कैसे डीलिंग की जाती है, उस पर हमारा वर्किंग और कमांडिंग बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है. जिसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने कुछ इसमें मेडिकल, कुछ हमारा कुछ एजुकेशन है इसमें,
We are not from that field. Definitely in the education line we need the B.Ed and M.Ed, these degrees only. Though I am Montessori trained also. बट बच्चों के साथ डीलिंग करने से ही हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाती है, उस तरीके से हमें एक लर्निंग मिल जाती है उनके साथ डीलिंग करते करते. तो जब बच्चा खा नहीं रहा हो या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि इसको तो दूध हमने शुरू से ही नहीं पिलाया, छोटे बच्चों की बात करें तो हमने कितने ही पेरेंट्स का ऐसा किया है कि उनको दूध पीना सिखा दिया है. और अभी कोविड के बाद से वी नो दिस प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल स्क्रीन वॉचिंग एडिक्शन. हमने इस पे भी वर्क करा है. और ऐसे जो स्क्रीन ओरिएंटेड जो एडिक्टेड चिल्ड्रन हैं वो हमने साल में 4 to 5 ही रखें, क्योंकि मुझे भी उसका एक रेशियो, क्योंकि हमें रिजल्ट भी देना है और बहुत सारे बच्चे ऐसे लेंगे तो मैं उस पर अगर वर्क नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो एक पेरेंट्स से जो हमारा ट्रस्ट बिल्डअप है वो ब्रेक हो जाएगा. तो 4 to 5 किड्स ऐसे रखते हैं और उस पर हमारा वापस पेरेंट्स के साथ भी लाइनिंग रहता है कि अब आप इसको मोबाइल अब धीरे करके कम कर दीजिए, अब 0 दे कर दीजिए, अब 3 महीना हो गया, अब इसको टीवी पे स्विच कर लीजिए, अब वो भी कम कर दीजिए, सेंटर पे टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए हमारे यहाँ, बिकॉज वी यूज टू हैव लॉट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़, एंड डेली वी हैव द डांस क्लासेस. फॉर द क्लासेस वी हैव डिफरेंट करिकुलम, फॉर द क्लासेस वी हैव डिफरेंट करिकुलम. सो एज वी डील इन द बोथ द फील्ड्स ना, डे केयर एंड प्री स्कूल, तो दोनों के लिए इसका करिकुलम है कि बच्चे वैसे ही बहुत ही उसमें बिजी स्केड्यूल में रहते हैं और हम लोगों से जैसे वो उस परव्यू में आते हैं तो हम उसको उस पॉइंट्स पे हम ट्रिगर करते हैं कि इन बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स एडमिशन में उन्होंने ये बातें बोली है तो हमें उस पर काम करना है. और चुनौतियाँ होती है, चैलेंजेस होते हैं, बच्चों में ये सुधार लाना है या उसमें ये चीज़ नहीं है ये लानी है, तो वो हमें बड़ा मज़ा आता है और हम उस पर काम करते हैं. सीधा साधा बच्चा मिल जाएगा तो उस पर क्या करना है. दैट चाइल्ड इज़ गोइंग टू फॉलो अस, ओबे अस एवरी टाइम. Principal of this school is Krishna Paneri madam, and before getting associated with the Kinchin, I was in the job only. But ऐसा नहीं था कि अगर किसी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन फील्ड में मैं जाऊँ तो मैं वहाँ नहीं करूँ, ऐसी इच्छा नहीं थी, ऐसा सोचा नहीं था मैंने. बट कृष्णा मैम गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको किंचिन में जुड़ना है तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें दिल से कनेक्टेड होना है. तो आप वेलकम हैं, और नहीं तो आपकी जो भी आप सर्विस कर रहे हैं यू कैन कंटिन्यू विद दैट. तो जब ये लाइन उन्होंने मुझे बोली तो मैंने कहा कि मैडम ने अगर ये वर्क मुझे दिया है, अगर बोला है, तो वो जहाँ तक इसको लेके आई है मैं उसको आगे ही उसको लेके जाऊँगी. तो उन्होंने जब ये चीज़ बोली, और उससे पहले मैं थोड़ा सा एसोसिएटेड भी थी किंचन से, तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में तो कलर्स नहीं हैं पर इतने बड़े बड़े प्रोफाइल वाले पेरेंट्स के किड्स यहाँ आते हैं. काफ़ी पुलिस वालों के भी किड्स थे, अच्छे बैंकर्स के थे, आई स्पेशलिस्ट सर अपने टाउन के हैं, बैरवा सर उनका किड. उस सेशन में जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने कहा यहाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो है यहाँ बात, जो इतने बड़े पीपल दे आर सेंडिंग देयर किड्स टू दिस प्लेस, बिकॉज दिस प्लेस इज रिजल्ट ओरिएंटेड वन, एंड आई वांट टू कनेक्ट विद दिस एंड आई विल डू हार्टेडली विद दिस, एंड आई विल टेक योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस. जो बच्चे पिछले 23 सालों से यहाँ से निकले हैं वो अभी जिस पोजीशन पे हैं या पीजी कर रहे हैं या किसी ऑक्यूपेशन में हैं, तो किंचिन से जो भी लर्निंग करा है उसका रिफ्लेक्शन उनके साथ आज भी चलता जा रहा है. पेरेंट्स अभी भी उनके बड़े हो गए, इतने बड़े किड्स हो गए, यहाँ लाते हैं, हमको मिलवाते हैं कि बच्चा इस पोजीशन पे ये, लेकिन वी आर हैट्स ऑफ कि उसको बेस जो यहाँ से मिला तो दे आर डूइंग आउट द गुड. काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे जा चुके हैं. हमारा प्लेस डे केयर में 6 months के बेबीज़ को लेता है, लास्ट एज 12 years है. इसमें हर एज के अंडर बच्चों की सीट फिक्स है. 6 months से 1 year तक के बच्चे हम 12 लेते हैं, 1 से 2 years तक के बच्चे अगेन 12. आफ्टर 2 years प्री स्कूल गेट स्टार्ट, प्री नर्सरी, LKG and HKG. In each class again we take 12 kids. ये 12 का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉट 10 नॉट 15, बिकॉज 23 years का हमारा होमवर्क हमने इसमें किया है. उसमें 12 किड्स को अगर हमने क्लासेस में रखें
सीइंग द करंट कैंपस प्रेमाइस, उसमें हमें रिजल्ट्स बेस्ट मिले हैं। हर एक बच्चे को हम अटेंड कर सकते हैं। हर एक बच्चे पे हमने 360 डिग्री जो हमारा वर्किंग एंगल है उस पर हमने वर्कआउट अच्छे से करा है। डेफिनेटली इसमें हमें टीम का भी सपोर्ट रहता है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और टीम बिल्डिंग क्रिएट करना, आप किसको रिक्रूट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट के बाद फिर उस पर्सन को भी हमें चेक रखना पड़ता है। एंड टचवुड गॉड की ग्रेस रही है हमारे पास कि 89 से 90% तो हमारे साथ जब भी कोई टीम जुड़ी है बहुत एडजस्टेबल, बच्चों के साथ बहुत हम्बल, मदरली ही ट्रीट उन्होंने करें हैं। और कुछ ऊपर नीचे होता है तो या तो हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी विजन को नहीं समझते हैं तो वो नहीं चल पाते हैं। तो टीम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसमें। रेशियो हमने फिक्स कर रखा है। और यही एक स्कूल है उदयपुर का जिसमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि अर्ली जो 5 इयर्स होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चा अपना बचपन अच्छे से जिए। एक उनके साथ प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मलिज्म टोटली इन बच्चों के साथ नहीं चलता है। ये बच्चे तो दौड़ते हैं तो इनके पीछे पीछे हमें दौड़ना पड़ता है। तो एक कंप्लीट किसी फॉर्मल अटायर में उनको रखें तो दे फील वेरी बाउंडेड। इवन उनके कभी रेगुलर में जो ड्रेसेस पहनते हैं ना उसमें भी उनको कभी कंजस्टेड कुछ लगता है। तो वी आर दिस इज नॉट ए प्लेस वेयर वी हैव एनी ड्रेस कोड्स। दे आर फ्री टू वेयर द गिफ्ट्स जो मामा ने दिलाई है, जो मम्मी ने दिलाई है, वो पहनो आराम से। एंड यहाँ पे जो वर्क हम कर रहे हैं वो एक सोसाइटी को हेल्प देने के लिए ही वर्क हो रहा है बेसिकली, कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। तो जॉइंट फैमिलीज में जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती थी, बच्चे कब जल्दी से बड़ा हो जाते थे, उनका जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होता था बहुत फास्ट होता था। वहाँ पे हर एज के सदस्य रहा करते थे, तो उनके साथ उनकी इंटरेक्शन, मिंगलिंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बन जाता था, वो बॉन्डिंग। पर अभी के इस एरा में क्या है ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहने लग गए हैं। तो उधर पेरेंट्स भी खुद अपनी पूरी डेली लाइफ में बड़ा ही एक उनका टीडियस स्केड्यूल रहता है पूरा। तो उसमें बच्चे को अगर वो खिला पिला रहे हैं, उसकी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पे ग्रुप में, टीम में बच्चा रहे और उसको डिफरेंट एज के बच्चों के साथ उसको बहुत कुछ सीखने को मिले, डिफरेंट एज के कैंडिडेट्स टीम्स हैं वहाँ पे जिनसे साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सेफ्टी कम्प्लीटली है और वहाँ बच्चा सेफ भी रहेगा और बहुत सारी चीज़ों से सीखेगा। बाकी घर में आप जानते ही हैं कि एक तो टीवी मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है और बच्चे होम स्टिकी भी हो जाते हैं, पैम्पर्ड भी बहुत हो जाते हैं। तो हमें रिजल्ट्स अभी 23 सालों से बहुत अच्छे मिले हुए हैं